Bismillahirrahmanirrahim. Our next lecture is brief introduction to nomenclature and importance of Latin names. So first of all, what is nomenclature? Nomenclature कहते किसको है? Nomenclature is basically naming. ठीक है, जब हम किसी भी चीज की नेमिंग करते हैं उसको कहा जाता है nomenclature. So botanical nomenclature means the naming of plant, the system in which we name the plants. So botanical nomenclature is the naming of plants and the related principles and rules. Botanical nomenclature में आ जाता है जो plants को name किया जाता है, उनको नाम दिया जाता है with related to the principles and rules according to which these names are given. तो इस सारे सिस्टम को कहा जाता है botanical nomenclature. ठीक है, ये जो principles and rule develop किए जाते हैं to name the plants, ये develop किए जाते हैं और अडॉप्ट किए जाते हैं इन सीरीज ऑफ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेसेस. ठीक है, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेसेस, कांग्रेस जो है किसी भी मीटिंग को कहा जाता है. इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेसेस जो है एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है तमाम बॉटनिस्ट की, हर फील्ड से जहाँ पे जो बॉटनिस्ट हैं वो इस मीटिंग में जो है वो शामिल होते हैं और वहाँ पे जो ये प्रिंसिपल्स और जो रूल्स हैं ये for naming of plants ये develop किए जाते हैं and then they are adopted after the approval. So botanical nomenclature is basically the naming of plants and the related principles and rules, and these principles and rules are developed and adopted in series of international botanical congresses. International Botanical Congress is basically is an international meeting which include the botanists from all the fields. They try to give all the plants a scientific name and develop the principles and rules for that naming. So these principles and rules are discussed in that meeting, then these principles and rules are developed and then they are adopted and approved. So principles and rules are listed in International Code of Botanical Nomenclature, which is also known as ICBN. So what is ICBN? ये जितने भी principles and rules जो International Botanical Congress में develop किए जाते हैं वो enlist किए जाते हैं International Code of Botanical Nomenclature में. ठीक है, International Code of Botanical Nomenclature क्या है? Basically, it is the set of rules and recommendation that deals with the botanical names that are given to plants, fungi and other plant organisms. ठीक है, बेसिकली जो इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस में रूल्स एंड प्रिंसिपल डेवलप किए जाते हैं वो इनलिस्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में. सो व्हाट इज आईसीबीएन या इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या है? इट इज एक्चुअली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रिकमेंडेशंस, ओके, दैट डील्स with the botanical names that are given to the plants and the fungi. अब मेन एम या मेन गोल जो है आईसीबीएन का क्या है कि आईसीबीएन प्रोवाइड्स वन करेक्ट नेम फॉर ईच टेक्सोनोमिक ग्रुप विद इन अ स्टेबल सिस्टम ऑफ नेम्स और क्लासिफिकेशन. अब जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है आईसीबीएन का, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, वो ये है कि हर टेक्सोनोमिक जो ग्रुप है, चाहे वो कोई फैमिली है, ऑर्डर है, डिवीजन है, उसको एक करेक्ट नेम दिया जाए, जो स्पीशी है उसको एक करेक्ट नेम दिया जाए और उसमें कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो. और ये जो करेक्ट नेम या साइंटिफिक नेम स्पीशी को दिया जाता है किसी भी प्लांट को, वो बेस करता है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पे. वो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो डेवलप होते हैं इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेसेस में एंड दे आर enlisted in the International Code of Botanical Nomenclature. So what is botanical nomenclature? Botanical nomenclature is the naming of plants and the related principles and rules. And where these principles and rules are developed, these principles and rules are developed and adopted in series of international botanical congresses, and these principles and rules are then listed in ICBN or International Code of Botanical Nomenclature. The main objective of ICBN is to provide one correct name for each taxonomic group.
मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज साइंटिफिक नेम। अब ये साइंटिफिक नेम होता क्या है, ठीक है। अब कोई भी जो नाम होता है इट इज बेसिकली या मेयरली अ कन्वेंशनल सिंबल, कोई भी एक कन्वेंशनल सिंबल आप इसको कह सकते हैं। और साइफर, साइफर क्या होता है कि कोई भी एक सीक्रेट ऑफ राइटिंग जो होता है या कोई भी एक सीक्रेट राज होता है, ठीक है। तो ये या तो कोई कन्वेंशनल सिंबल होता है कि किसी भी प्लांट के बारे में कि उसको किस तरह से हम सिंबलाइज कर रहे हैं, या फिर एक साइफर होता है, ठीक है। और ये सर्व करता है एज अ मीन ऑफ रेफरेंस एंड इट अवॉइड्स द नीड फॉर कंटिन्यूस यूज ऑफ कम्बरसम डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस। तो जब हम प्लांट्स के लिए कोई भी कम्बरसम क्या होती है कि लार्ज या हैवी कोई डिस्क्रिप्शन यूज की जाए, ठीक है। तो बजाय इसके कि प्लांट्स के लिए लार्ज हैवी डिस्क्रिप्शंस यूज की जाए, उनको किसी कन्वेंशनल सिंबल या साइफर की बेस पे जो है उनको नाम दिया जाए, एक साइंटिफिक नेम डेवलप किया जाता है ताकि वो एक रेफरेंस के तौर पे सर्व हो सके, ताकि वो यूनिवर्सल हो जिसको तमाम जो रीजन्स हैं उनमें जो है वो अडॉप्ट किया जा सके। So the fundamental principle of scientific nomenclature is that names must be unambiguous and universal. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का, किसी भी प्लांट को साइंटिफिक नेमिंग देने के लिए, साइंटिफिक नेम देने के लिए हमेशा ये ख्याल रखा जाता है कि ऐसा नाम दिया जाए जो यूनिवर्सल हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रीजन जो है उसको अडॉप्ट किया जा सके, एंड इट मस्ट बी एम्बिगुअस, ठीक है। और इसको जो है एक से ज्यादा मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो, एम्बिगुअस ना हो ये, ठीक है, सूटेबल हो, ठीक है, इसकी ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रिटेशन ना हो। तो साइंटिफिक नेमिंग का मकसद ये है कि एक ऐसी नेमिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का मकसद ये है कि एक ऐसा नेमिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाए कि जिसमें प्लांट्स को जो नाम दिए जाएं वो यूनिवर्सल हों एंड दे आर अनएम्बिगुअस, ठीक है। The formation and use of scientific names of organisms for nomenclature purposes are governed by codes of nomenclature. जो हमने अर्लियर स्लाइड में बात की कि कोड्स ऑफ नोमेनक्लेचर अवेलेबल हैं, जिस तरह इंटरनेशनल कोड है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, ठीक है, मतलब प्लांट्स की नेमिंग के लिए। इसी तरह हर ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए डिफरेंट कोड्स मौजूद हैं उनको नाम देने के लिए, ठीक है। और उन नोमेनक्लेचर्स के अंदर सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल सेट हैं जिनको फॉलो करके जो है प्लांट्स को जो है डिफरेंट जो है नेम्स दिए जाते हैं, ऐसे नेम्स दिए जाते हैं जो कि यूनिवर्सल हों और अनएम्बिगुअस हों, ठीक है। Moving towards the codes of nomenclature. So what are the codes of nomenclature? International Code of Botanical Nomenclature, ICBN, is for plants including fungi and cyanobacteria. तो International Code of Botanical Nomenclature या ICBN जो है इसमें नेमिंग की जाती है प्लांट्स की including fungi and cyanobacteria. Second one is International Code for nomenclature of cultivated plants, that is ICNCP, ठीक है। ये जो nomenclature plants है इसमें सिर्फ उन plants को नाम दिया जाता है जो कि cultivated होते हैं। So this is ICNCP is used for naming of plants which are cultivated plants. Third one is इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN इसको कहा जाता है। जिस तरह ICBN है इसी तरह ICZN भी है कि एनिमल्स की नेमिंग के लिए भी सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो है वो सेट किए गए हैं और इस ऐसे कोड को कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सिमिलर इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी नेमिंग के लिए, उनको एक स्पेसिफिक नाम देने के लिए जो है डिफरेंट नोमेनक्लेचरल सिस्टम्स जो है वो बनाए गए हैं। और ये नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है ये बेस कर रहे हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पे, और ये प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जो है ये बनाए जाते हैं इंटरनेशनल कांग्रेसेस में, चाहे वो प्लांट्स पे हो रही हैं, चाहे वो एनिमल्स पे हैं, वायरसेस पे हैं, बैक्टीरिया पे हैं, वो मीटिंग उनमें डिस्कस किया जाता है इन प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को, then they are applied or adopted. So these are the different codes of nomenclature, principles of nomenclature or rules of nomenclature. Moving towards the next slide. Students, आपको समझ आ रही है? Students, can you hear me? समझ आ रही है आपको?
यस मैम। ओके ओके ठीक है। अब इन कोड्स के दरमियान या इन प्रिंसिपल्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इन डिफरेंट कोड्स के दरमियान। तो ये कोड्स किस तरह से डिफर करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, उसमें टोटोनिम्स जो है वो यूज नहीं किए जाते, जबकि जो आईसीजीएन है उसमें टोटोनिम्स यूज किए जाते हैं। अब टोटोनिम्स क्या होते हैं कि टोटोनिम एक ऐसा साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जिसमें सेम वर्ड जो है वो जीनस के लिए भी यूज हो रहा होता है और सेम वर्ड स्पीशीज के लिए भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो टोटोनिम इज बेसिकली अ साइंटिफिक नेम in which the same word is used for both genus and species. टोटोनिम एक ऐसा साइंटिफिक नेम है जिसमें जीनस और स्पीशी के लिए जो है वो सेम वर्ड जो है वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है, उनके केस में ये रूल या प्रिंसिपल्स नहीं है कि टोटोनिम्स को यूज किया जाए, जबकि जो एनिमल्स हैं उनके कोड ऑफ नोमेनक्लेचर में जो है टोटोनिम्स जो है वो एप्लीकेबल है, यानी जो नाम जीनस के लिए यूज किया जाता है वही स्पीशी के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है इन कोड्स के दरमियान। सो नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक्स, डिस्टरबेंस क्रिएट मत करें, ठीक है, अपने माइक्स को म्यूट रखें। So the second one is the starting points, the time from which these codes are in effect vary from group to group. अब different principles जो है वो develop किए गए और different जो है dates में different years में ये adopt किए गए, ठीक है। जो starting point था हर एक code का वो different था। For example botany में अगर बात करें तो जो plants की naming थी वो start हुई थी 1753 में, जब कॉल लिनियस जो था जिसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, जब उसने स्पीशीज प्लांटेरम जो है उसको डेवलप किया था, ठीक है। जबकि जोलॉजी में जो जोलॉजिकल नेमिंग है वो स्टार्ट हुई थी 1758 में ठीक है। तो जो बॉटनी में जो नेमिंग स्टार्ट हुई, प्लांट्स की नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ वो 1753 में हुआ, जबकि जोलॉजी में जो स्टार्ट हुआ, एनिमल्स की नेमिंग में जो स्टार्ट हुआ वो हुआ 1758 में। इसी तरह जो बैक्टीरियोलॉजी में जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था 1980। बैक्टीरिया की जो नेमिंग की गई, उनको जो क्लासिफाई किया गया, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए जो कोड्स डेवलप किए गए वो स्टार्ट हुए 1980 में। तो सेकंड डिफरेंस इन कोड्स के दरमियान क्या है कि इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो डिफर कर रहे हैं। Then a biocode has been suggested to replace several codes although implementation is not in sight, ठीक है। तो बायोकोड बेसिकली है क्या कि बायोकोड एक ऐसा यूनिफाइड कोड मतलब दिया जाना चाहिए टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। तो बायोकोड की सजेशन हुई कि एक यूनिफाइड जो है वो टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर या यूनिफाइड कोड होना चाहिए फॉर टेक्सोनोमिक नोमेनक्लेचर, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक नहीं हो सकी, ठीक है। तो व्हाट इज बायोकोड? बायोकोड is a unified code for taxonomic nomenclature, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट प्रपोज किया गया था 1997 में, ठीक है, कि एक बायो कोड एक यूनिफाइड कोड होना चाहिए जो यूनिवर्सल होना चाहिए तमाम नेमिंग ऑफ प्लांट्स के लिए, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी नेमिंग के लिए एक यूनिफाइड कोड होना चाहिए और इसको कहा जाता है बायो कोड। So there is also a debate concerning the development of a phyllocode to name clades of phylogenetic trees rather than taxa. जिस तरह बायो कोड है इसी तरह फाइलो कोड को भी सजेस्ट किया गया कि एक फाइलो कोड जो है वो भी डेवलप होना चाहिए, ठीक है। फाइलो कोड में क्या, जो क्लेड्स हैं मतलब जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो है प्लांट्स के, उनके बेस पे जो उनके क्लेड्स बनते हैं, उनके ग्रुप्स बनते हैं, उनके लिए भी जो है एक अलग से जो है रूल ऑफ प्रिंसिपल्स या रूल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। और उनको जो है फाइलो कोड का नाम दिया जाना चाहिए। तो ये दो सजेशंस थी, बायो कोड एंड फाइलो कोड, बट दे आर नॉट स्टिल इन यूज, ठीक है। अभी तक जो है बायो कोड और फाइलो कोड जो है वो यूज जो है नहीं हो रहे। तो ये डिफरेंसेस थे कोड्स के दरमियान, ICBN, ICZN, bacteriology code, and then we have seen studied about the biocode and the phylocode. Moving towards the next slide.
The comparison between scientific names and common or vernacular names. ठीक है, अब जो scientific names और जो common names हैं या इनको vernacular names या local names भी कहा जाता है, उनके दरमियान comparison क्या था कि जो botanical names हैं वो तो universal है, मतलब जो एक इलाके में नाम है, for example यहाँ पे रोज का नाम है रोजा इंडिका, तो दुनिया के आप जिस इलाके में भी चले जाएं जो वो वाली रोज की स्पीशी है वो रोजा इंडिका ही कहलाएगी। ये हैं बोटेनिकल नेम्स, मतलब ये यूनिवर्सल होते हैं। जबकि जो कॉमन नेम्स होते हैं दीज आर ऑफ लिमिटेड ओरिजिन, क्योंकि ये किसी भी एक सिंगल लैंग्वेज से या सिंगल जोग्राफिकल रीजन से बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कॉमन नेम एक प्लांट का, फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्लांट व्हिच इज नोन एज सोंचल, मालवा पार्वीफ्लोरा। ठीक है, अब उसका बोटेनिकल नेम जो है वो है मालवा पार्वीफ्लोरा। ठीक है, उसका लोकल नेम जो है सोंचल है। मे बी इन कश्मीर इट इज नोन एज सोंचल, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान मे बी इट इज नोन बाय सम अदर वर्नाक्यूलर और लोकल नेम। ठीक है, तो जो लोकल नेम है वो वेरी करते हैं एरिया टू एरिया और लैंग्वेज टू लैंग्वेज, डायलेक्ट टू डायलेक्ट। ठीक है, कि हर एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्लांट का क्या नाम है। पश्तो में वो प्लांट का नाम डिफरेंट होगा, सराइकी में प्लांट का नाम डिफरेंट होगा, हिंदको में प्लांट का नाम डिफरेंट होगा, पंजाबी में डिफरेंट होगा, सिंधी में डिफरेंट होगा, पहाड़ी में डिफरेंट होगा। तो ये जो वर्नाक्यूलर नेम्स की कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए जो है एक साइंटिफिक नेमिंग ऑफ सिस्टम या बोटेनिकल नेम्स जो है वो दिए गए थे और इसी बेस पे ये नोमेनक्लेचरल सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। सो बोटेनिकल नेम्स आर यूनिवर्सल while common names are limited. Next one is sometime one vernacular name may be used to differentiate taxa or taxon may have different common names. ठीक है, अब sometimes ऐसा होता है कि जिस तरह मैंने आपको सोंचल की एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट को एक इलाके में सोंचल कहा जाता है तो हो सकता है किसी दूसरे प्लांट को, ठीक है, किसी दूसरे इलाके में सोंचल का नाम दे दिया गया हो। तो ये जो वर्नाक्यूलर नेम्स हैं इनसे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि एरिया टू एरिया जो है ना सिर्फ नाम वेरी करते हैं बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वही नाम डिफरेंट एरिया में किसी डिफरेंट प्लांट के लिए यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सो कॉमन नेम्स मे बी मिसलीडिंग, दे मे मिसलीड अस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइंटिफिक नेम है जिस तरह के सोलेनम मेलेंजीना, ठीक है, बैंगन जिसको कहते हैं, ठीक है, सेलेनम मेलेंजिना। अब इसमें क्या है कि इसका जो कॉमन नेम है वो है एग प्लांट। ठीक है, तो एग प्लांट में कोई एग तो मौजूद नहीं होता, इट हैज कॉमन नेम एग प्लांट, लोगों ने इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये इट इज समथिंग मिसलीडिंग। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम मेलेंजिना, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एग प्लांट। तो जो वर्नाक्यूलर नेम्स है दे आर मिसलीडिंग, दे क्रिएट कंफ्यूजन। मे बी इन वन रीजन देयर इज वन वर्नाक्यूलर फॉर one plant but in another region it has different vernacular name. Similarly maybe in one region plant is, एक रीजन में प्लांट को जो है एक वर्नाक्यूलर नेम से बुलाया जो है वो जाना जाता हो और दूसरे रीजन में दूसरे लोकल या वर्नाक्यूलर नेम से। तो ये जो वर्नाक्यूलर नेम्स हैं ये कंफ्यूजन कॉज करते हैं, मिसलीडिंग है, जिसकी वजह से जो है वो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जो है वो डेवलप किया गया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए प्लांट्स की नेमिंग के लिए जो कि यूनिवर्सल हो। ठीक है, Moving towards the characteristics of species scientific names. ठीक है, characteristics क्या हैं कि species को किस बेस पे scientific नाम जो है वो दिए जाते हैं। तो जो species का scientific name होता है किसी भी plant species का, that consists of binomial. Binomial mean it's bi means two, nomial means name. ठीक है, ये दो नामों पे जो है मुश्तमिल होता है। It consists of two names. ठीक है, जो पहला नेम होता है बाइनोमियल में वो हमेशा शो करता है जीनस को, और जो सेकंड नेम होता है प्लांट का इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इट्स स्पीशीज। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट्स which consists of two parts of names. The first part shows or represents the generic name while the second part represents the species name. So binomial system of nomenclature was first founded by Jean Bohin, but
The binomial nomenclature was first consistently used by Linnaeus in his book Species Plantarum in 1753. सबसे पहले प्रपोज तो जो है वो जीन बोहेन ने किया था, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या यूटिलिटी थी जो वो स्टार्ट हुई थी वो थी लीनियस के टाइम में 1753 में। इन हिज बुक स्पीशीज प्लांटेरम उसने प्लांट्स को जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के तहत जो है वो क्लासिफाई किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नामों पर मुश्तमिल होता है प्लांट। पहला जो प्लांट का नाम है दैट फर्स्ट वर्ड of a plant describe or represent its generic name, while the second word of a name describe its species. So a generic name is a collective name for a group of plants that all share similar characteristics. Generic name एक ऐसा नाम होता है जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको एक ही नाम दिया जाता है, एक ही जीनस के अंदर रखा जाता है। जितनी भी स्पीशीज जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी फॉर एग्जांपल बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बॉटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एनरोल्ड हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो उनको एक ही केमिस्ट्री की क्लास में रखा जाएगा। इसी तरह जितने भी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं जो कि जोलॉजी डिपार्टमेंट में एनरोल्ड हैं उनको जोलॉजी में रखा जाएगा। ठीक है, जोलॉजी डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाएगा, और जो बॉटनी में एनरोल्ड है उनको बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो ये डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं इसी तरह स्पीशीज के लिए भी हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट जो सिमिलर स्पीशीज हैं जो शेयर कर रही हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक विद ईच अदर, उनको कलेक्टिवली जो एक ग्रुप में रखा गया उसको कहा गया जीनस। फॉर एग्जांपल रोजा इंडिका, तो जो रोजा है वो शो कर रहा है जीनस के नाम को, और जो इंडिका है वो शो कर रहा है स्पीशी के नाम को। ठीक है, तो जो रोजा होंगे इट मींस जितने भी रोजेज हैं उन सब को रखा गया किसके अंदर, रोजा जीनस के अंदर। सो द स्पेसिफिक नेम अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स विद इन अ जीनस। और इन्हीं प्लांट्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, उन डिफरेंसेस को शो करने के लिए फिर क्या किया गया, स्पीशीज नेम। और ये जो स्पीशीज नेम है ये डिस्टिंग्विश करता है डिफरेंट प्लांट्स को एक ही जीनस के अंदर। ठीक है, so there are for example 2000 solanum species in the genus Solanum. They are differentiated by specific names. जिस तरह के जीनस, ढेर सारे जीनस हैं, सोलेनम की एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें तकरीबन 2000 प्लांट स्पीशीज हैं। ठीक है, तो उनको डिफरेंशिएट किया गया है उनके स्पेसिफिक नेम से। इसी तरह specific epithets refer to different things. For example, it may refer to distinctive morphological, ecological और chemical feature. अब जो species का name है, ये जो specific epithet जिसको हम कहते हैं वो represent कर रहा होता है, show कर रहा होता है कि कोई भी distinctive character, चाहे वो morphological character हो, ecological हो, chemical हो, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हो, कि उस बेस पे स्पीशी को जो है नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है आइपोमिया एक्वेटिका, तो आइपोमिया तो जीनस का नाम है, सारे जितने स्पीशीज हैं आइपोमिया की वो इस जीनस के अंदर आ जाएंगे, और इनकी स्पीशीज आगे से डिफरेंट है। एक्वेटिका मींस कि आइपोमिया की वो स्पीशीज जिनकी एक्वेटिक हैबिटेट होगी, पानी में जो प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे होंगे उनको कहेंगे एक्वेटिका। इसी तरह एलेफिया मल्टीफ्लोरा, तो एलेफिया इज अ जेनरिक नेम, मल्टीफ्लोरा इज अ स्पीशी नेम, और स्पीशी नेम डिराइव हुआ है किससे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक से कि इसमें न्यूमरस ओव्यूल्स, हाँ जी ओव्यूल्स है, मल्टीफ्लोरा। ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर्स के जो है वो प्लांट्स मौजूद होंगे। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो स्पीशी का नेम है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो है स्पीशी को आइडेंटिफाई किया होता है। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम इसाबेलाए विच इज द इसाबेला जो साइंटिस्ट था। इसी तरह बहुत सारी स्पीशीज हैं, फॉर एग्जाम्पल मेडिकेगो पोलीमार्फा एल और लीनियस, इसका मतलब है कि उसको सबसे पहले लीनियस ने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक एपिथेट्स या स्पीशीज के नेम्स हैं वो दिए जाते हैं बेस्ड ऑन दियर morphological characteristic, maybe their ecological, their chemical characteristic, maybe it is after the name of the scientist who first identify it, or maybe it refers to some geographical origin. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जोग्राफिकल ओरिजिन पे किस तरह डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशी का नाम है हिमालयाना,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका ओरिजिन कहाँ है, हिमालयाज। इसी तरह युगेंडेंस तो युगेंडा, एथोपिकम तो एथोपिया उसका ओरिजिन है। तो जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है ये डिफरेंट फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बेस पे भी जो ये नाम हो सकता है, किसी इकोलॉजिकल फीचर की बेस पे भी, ज्योग्राफिकल ओरिजिन की बेस पे भी, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, However, जो ICBN है वो रिकमेंड करता है कि ये जो स्पेसिफिक एपिथेट्स जो ज्योग्राफिकल नेम से या ज्योग्राफिकल ओरिजिन से लिए जाते हैं उनमें जो है एक एडजेक्टिव एंड पे जरूर होना चाहिए, एनसिस, ठीक है, ई या फिर एनएस या फिर ईकस। ये एडजेक्टिव्स जो है हमेशा जो है वो ज्योग्राफिकल ओरिजिन जब शो कर रही होती है कोई भी स्पीशी तो एंड पे ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये जरूर जो है वो शो होने चाहिए। इसी तरह जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नेम्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो टॉटोनिम्स नहीं होंगे, यानी जेनरिक नेम कभी भी रिपीट नहीं होगा फॉर दैट ऑफ स्पीशीज नेम। और ऐसे जितने भी नाम थे अब वो जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, अब जो है जेनरिक नेम डिफरेंट है एंड स्पीशीज नेम डिफरेंट होता है। ठीक है, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक नेम्स ऑफ द स्पीशीज। सो ये राइटिंग अ बोटेनिकल नेम, अब बोटेनिकल नेम जो है उसको किस तरह से जो है राइट आउट करते हैं। द स्पेसिफिक एपिथेट में बी फॉलोड बाय वन और मोर अथॉरिटीज। पहले तो मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा प्लांट के नाम। पहला नाम जो है वो जीनस को शो करेगा, सेकंड जो है वो स्पीशी को शो करेगा। अब जो स्पेसिफिक एपिथेट है, जो स्पीशी का नाम है, उसके बाद हमेशा इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अथॉरिटीज। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी इज बेसिकली नेम और नेम्स ऑफ अ पर्सन और पर्सन्स हु फर्स्ट डिस्क्राइब द स्पीशीज। अथॉरिटी किसको कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हमेशा जो है वो अथॉरिटी को यूज किया जाता है। अथॉरिटी एक ऐसा नाम होता है या एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं किसी ऐसे पर्सन का या पर्सन्स का जिन्होंने जो है सबसे पहले उस स्पीशी को डिस्क्राइब किया। फॉर एग्जांपल सोलेनम अमेरिकनम मिलर, तो सबसे पहले जो है मिलर जो नाम है, ये मिल एक साइंटिस्ट था, उसने इसको जो है सबसे पहले एक्सप्लेन आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया, तो इस स्पीशी का नाम पड़ा सोलेनम अमेरिकनम मिलर। सो साइंटिफिक नेम ऑलवेज फॉलोज अथॉरिटी। And what is authority? Authority is a name or names of a person or persons who first describe the species. Next is the protologue. अब प्रोटोलॉग क्या होता है कि जितना भी जो ओरिजिनल मटेरियल है, ठीक है, जो एसोसिएटेड होता है किसी नए पब्लिश्ड नाम के साथ और इसमें उसकी डिस्क्रिप्शन या डायग्नोसिस के बारे में बताया गया होता है पहले, इसको कहते हैं प्रोटोलॉग। सो प्रोटोलॉग बेसिकली क्या होता है कि प्रोटोलॉग जो है जो भी ओरिजिनल मटेरियल जो है प्लांट के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, चाहे वो उसकी इलस्ट्रेशन होती है, कोई उसका सिनोनिम होता है, कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी उसका डिस्क्रिप्शन जो एसोसिएट कर रहा होता है न्यूली पब्लिश्ड नेम के साथ, उसको हम कहते हैं protologue. The protologue is the ensemble of all the elements which are associated with the original publication of a taxon name. For example, Solanum americanum Miller, The Gardner's Dictionary edition 8, तो ये इसके जो है पहले जो है ये सारा इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये कहाँ पे ये नाम जो है ये दिया गया है, कहाँ पे ये साइट हो चुका है, इसकी टाइप क्या है, हैबिट क्या है, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिप्शन एसोसिएटेड होगी किसी पब्लिश्ड नेम के साथ, जो उसकी ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन एसोसिएटेड होगी, उसको हम कहेंगे protologue. So in writing a botanical name, the specific genus and specific epithet always follows the authority name. What is the authority? It is the name or names of person or persons who first describe the species. ठीक है, and what is protologue? It is the original material which is associated with the new published name, and it comprises of its description such as illustration, some synonyms और some description earlier. ठीक है, इसको कहते हैं प्रोटोलॉग। सो रोल ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, अब डिफरेंट कैटेगरीज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैटेगरी और इसके एंड पे जो है किस तरह से उसकी एंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और इसकी जो इनकी जो है सब कैटेगरीज हैं कि इनको किस तरह से क्लासिफाई करना चाहिए। ये जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं इनको कहा जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की।
ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक हायरार्की बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो अरेंज किया जाता है सक्सेसिव लेवल्स में, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन के लिहाज से जब प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की में प्लांट को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में जो है क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे जो लोअर रैंक होगा वो होगा स्पीशीज और सबसे जो हायर रैंक होगा वो होगा किंगडम। ठीक है, और हर डिवीजन, हर किंगडम की सब डिवीजन्स और सब क्लासेस, सब ऑर्डर्स जो है मौजूद होंगे, और ये इनके डिफरेंट सफिक्सेस हैं जो दिए गए हैं कि किस तरह से एंड होगा। फॉर एग्जांपल फाइलम है तो एंड पे बायोन्टा आएगा, डिवीजन है तो फाइटा आएगा, क्लास है तो ऑप्सिडा आएगा, ऑर्डर है तो एल्स आएगा एंडिंग पे, सो फैमिली है तो एसी आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन कैटेगरीज हैं जो दी गई हैं। सो फीचर्स ऑफ द टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें जो है सम कंजर्व नेम्स हैं फैमिलीज के। ठीक है, अल्टरनेटिव फैमिलीज नेम है। फॉर एग्जांपल एपीएससी के लिए जो इसका ओल्ड नेम था वो था अम्बेलिफेरी, अब इसका जो न्यू नेम है इस फैमिली का वो है एपीएसी। अम्बेलिफेरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, सिमिलरली पामी इज नाउ कॉल्ड एज एरिकेसी, कंपोजिटी इज नाउ नोन एज एस्ट्रेसी, क्रूसीफेरी इज नाउ नोन एज ब्रेसिकेसी, Gutiferi is known as Gluciaceae, Leguminosae is known as Fabaceae, Labiata is known as Lamiaceae, and Gramineae is known as Poaceae. So these are 8 names कि ये 8 फैमिलीज जो थी इनके ओल्डर्स नेम थे, इनके जो है पुराने नाम थे, उनको क्लासिफाई किया गया न्यू नेम्स के साथ, उनके न्यू नेम्स रखे गए अकॉर्डिंग टू सफिक्स जो एंड हो रहे थे एसी में। ठीक है, तो ओल्डर नेम्स भी कंजर्व्ड है, यूज किए जाते हैं अभी भी, और इनके जो न्यू नेम्स हैं वो भी जो है वो यूज किए जाते हैं टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन में और टेक्सोनोमिक हायरार्की में। So what are the main features of taxonomic hierarchy? The names above the rank of genus are based upon the name of an included genus. Each rank has a distinctive ending that is attached to the stem of the name of the genus. For example, Solanum is a genus in the family Solanaceae. तो हमेशा क्या होता है कि जो भी जीनस के अबव का रैंक है वो किस पे बेस कर रहा होता है, जो उसमें जीनस इंक्लूड है उस पे बेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि सोलेनम एक जीनस है तो उसकी जो फैमिली का नाम है वो है सोलेनेसी, यानी कि जीनस का नाम हमेशा किसी न किसी तरह से इंक्लूड किया जाता है किसी डिवीजन में जो उससे अबव डिवीजन है। ठीक है, the word taxon is used to refer to a taxonomic category of any rank. The plural is taxa. कोई भी taxonomic category है, चाहे वो जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, कोई भी ग्रुप है, उसके लिए ये taxonomic category है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे taxon का। ठीक है, और जब बहुत सारी कैटेगरीज को इकट्ठे कलेक्टिवली हम कहेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टेक्सा का। ठीक है, अब जो नेम है जीनस का वो हमेशा जीनस और स्पीशी, जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो एक तो वो इटैलिसाइज्ड होंगे, ठीक है, और दूसरा या तो वो बोल्ड होंगे या तो वो अंडरलाइन होंगे। ठीक है, और जीनस का जो नेम है, जो जीनस नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ऑल द अदर लेटर्स चाहे वो स्पीशी का पहला लेटर होगा स्पीशी नेम का या जीनस के बाकी लेटर्स होंगे वो स्मॉल होंगे। ठीक है, तो जीनस के नाम में जो जीनस और स्पीशी का नाम है वो हमेशा या तो अंडरलाइन होगा या उसको इटैलिक्स करेंगे, इटैलिसाइज्ड करेंगे या उसको बोल्ड रखेंगे। ठीक है, और सिर्फ पूरे नाम में बाइनोमियल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होगा जीनस का वो कैपिटल होगा और बाकी तमाम जो वर्ड्स होंगे वो स्मॉल होंगे। सिमिलरली द नेम्स ऑफ जेनरा आर ट्रीटेड एज नाउन। ठीक है, जो एक जब टेक्सोनोमिक ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे जीनस, जब बहुत सारे एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस की हम बात कर रहे होंगे तो प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे वर्ड जेनरा। तो जेनरा के जो नेम्स हैं वो नाउन होंगे। ठीक है, उनको नाउन कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली जो साइंटिफिक नेम है किसी भी स्पीशी का वो कॉम्बिनेशन होगा, जैसे कि पहले भी बताया है, जीनस का और स्पेसिफिक epithet का या species name का, which is followed by the authority of the scientist name. For example, Solanum nigrum linnaeus.
तो सोलेनम नाइग्रम को इटैलिसाइज्ड किया गया है यहाँ पे, ठीक है, इटैलिक्स में लिखा गया है इनको। और सोलेनम shows the genus name, नाइग्रम shows the species name, and Linnaeus shows the authority, the scientist और author's name which first describe it, ठीक है। जो वर्ड स्पीशीज है वो सिंगुलर भी स्पीशीज लिखा जाएगा, और जब प्लूरल यूज करेंगे बहुत ज्यादा स्पीशीज तो उसको तब भी स्पीशीज ही लिखा जाएगा, ठीक है। It is always correct to write the specific epithet in all lower case and after all generic names may be capitalized, ठीक है। हमेशा जो स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पीशीज का नेम है उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको हमेशा जो है वो कंसिडर किया जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। जो जीनस नेम होगा उसको कंसिडर किया जाएगा नाउन, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अब sometimes ऐसा होगा कि when several species of one genus are given in sequence, the name of the genus can be abbreviated to its first letter. For example, अगर बहुत सारे नाम जो है एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीशीज के नाम आप एक ही सीक्वेंस में दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रोजा इंडिका, रोजा डोमेस्टिका, रोजा ब्रोनाई, ठीक है। तो आप सबसे पहले रोजा इंडिका लिखेंगे, देन नेक्स्ट अगर रोजा डोमेस्टिका है तो आप फर्स्ट नेम जो जीनस नेम है उसको एब्रीविएट करेंगे, यानी सिर्फ आर लिखेंगे, और डॉट डोमेस्टिका। जिस तरह की यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है हंटेरिया कॉन्गोलेना, ठीक है। इसके बाद स्पीशी है हंटेरिया जेलेनिका। तो दोबारा से पूरा जो है फुल जो है हंटेरिया का नाम या जीनस नेम लिखने की जरूरत नहीं है, उसको जस्ट एब्रीविएट करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Similarly, the authority can be abbreviated to save space, especially for authors who described a large number of species, ठीक है। तो authority को भी एब्रीविएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लीनियस का नाम आपने लिखना है सोलेनम नाइग्रम लीनियस, तो आप सोलेनम नाइग्रम एल डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू अवॉइड दिस, to create the space या to save the space, ठीक है। The author's name is never italicized or underlined. जो स्पीशी का नाम होगा, जो बाइनोमियल नेम में जो जीनस और स्पीशी का नाम होगा वो हमेशा इटैलिक्स में होगा या अंडरलाइन होगा, ठीक है। जबकि जो अथॉरिटी होगी, जो ऑथर का नेम होगा वो ना तो इटैलिसाइज्ड होगा, ना बोल्ड होगा और ना ही वो अंडरलाइन होगा, ठीक है। अब जो डिफरेंट सब स्पेसिफिक रैंक्स हैं, जिस तरह के सब स्पीशीज हैं, वैरायटीज हैं, ठीक है, उनको किस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सोलेनम विलोसम सब स्पीशीज मिनिएटम एंड देन अथॉरिटी या ऑथर साइटेशन, यानी कि जीनस और स्पीशी के बाद उनके सब रैंक्स लिखेंगे, सब टेक्सोनोमिक ग्रुप्स लिखेंगे, और फिर जो है वो अथॉरिटी जो है वो मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सोलेनम विलोसम सब स्पीशीज मिनिएटम बर्न एक्स विल्ड एडेमस, ठीक है। तो व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज बेसिकली the two name system of plant in which the first name refers to the genus name and second name refers to the species name, and botanical nomenclature follows the International Code of Botanical Nomenclature, that is ICBN, in which principles and rules are given to classify and naming of plants, and this is developed by International Botanical Congress. This is today's lecture. Any questions, students?